اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قانون کے طالب علموں کے لیے، ججز کے لیے، عوام الناس کے لیے، بلکہ میں کہوں گا کہ ہر شخص کو اس کے حوالے سے علم ہونا چاہیے۔ آج ہم قرآن کریم کی جو آیات وصیت اور میراث کے حوالے سے ہیں، یعنی وراثت کے حوالے سے ہیں، اس کی بات کریں گے۔ ہماری محترم بہن جو اسلام آباد میں ہوتی ہیں، ان کے ترغیب دلانے پر اس ٹاپک کو جو ہے وہ مزید بہتر انداز میں پیش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ میری وہ بہن جو کہ کسی بھی انسان پر ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، بلکہ خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں خواتین کو وراثتی حق سے محروم کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اور جو کوششیں کی جاتی ہیں باپ کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، اس حوالے سے بھی وہ میرے ساتھ علم اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں اپنی اس بڑی بہن محترمہ زاہدہ اے سلیم صاحبہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اس قابل بنائے کہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں۔ دوستو، وصیت کے حوالے سے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 180 تا 182 کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے کسی کے موت بشرطے کے چھوڑے کچھ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، انصاف کے ساتھ ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں پر، جو پھر بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے، اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والوں سے کسی طرف داری یا گناہ کا، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان تو کچھ گناہ نہیں اس پر۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ دوستو، ان آیات سے عرب کے ایک جاہلانہ رواج میں اصلاح فرمائی گئی۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ مرتے وقت اپنے مال کی وصیت ایسے لوگوں کے نام کر جاتے جن سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہ ہوتا، اور اپنے زوم باطل میں اسے سخاوت سے تعبیر کرتے، اور اگر کوئی وصیت کیے بغیر مر جاتا تو وراثت صرف اولاد اور بیوی میں بٹ جاتی، والدین اور دوسرے رشتہ دار بالکل جو ہے نا وہ اس سے محروم رہتے۔ یہ دونوں صورتیں کیونکہ ظلم کے زمرے میں آتی تھیں، اس لیے قرآن حکیم نے اس کی اصلاح فرما دی، لیکن یک لخت سارے سابقہ نظام کو دھرم بھرم نہیں کیا گیا، بلکہ آہستہ آہستہ اصلاح فرمائی گئی تاکہ طبیعتوں میں بے چینی بھی پیدا نہ ہو اور اصلاح کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وراثت کی تقسیم کا منظم و مکمل قانون نافذ کیا جاتا، انہیں ان آیات میں وصیت کا حکم دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے اور ہر ایک کو اس کا حق کے مطابق حصہ دے۔
लेकिन इतने अहम काम को अवाम की मर्जी और सिर्फ इनके रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता था। इसलिए कुछ मुद्दत के बाद सूरह निसा में वरासत के अहकाम तफसील के साथ फरमा दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम वसीयत और अहकाम वरासत की वजाहत फरमाते हुए दो कायदे बयान किए। पहला कायदा तो यह है कि इन रिश्तेदारों के लिए वसीयत की ममानत कर दी जो वरासत में हिस्सादार हैं। सुन लें जी बात, जिनको वरासत में हिस्सा होना मिलना है उनके लिए वसीयत करना जो है उसकी ममानत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी। दूसरा कायदा है कि वसीयत को माले मतरूका के तीसरे हिस्से तक महदूद फरमा दिया। 1/3 हिस्सा तक अपने गैर वारिस रिश्तेदारों या दूसरे मुस्तहिक लोगों को या रफ़ाए अम्मा के कामों में खर्च किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने वसीयत करनी है तो वो वसीयत आपने गैर वारिस रिश्तेदारों के हक में कर सकते हैं, मुस्तहिकीन के हक में कर सकते हैं और रफ़ाए आमा के कामों के लिए कर सकते हैं, लेकिन कितना? ओनली 1/3 ऑफ योर इनहेरिटेंस। जितनी आप विरासत छोड़ेंगे उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा। और मना फरमा दिया गया। ये बात हमें अपने ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि जो वारिस हैं, जो विरासत में हिस्सेदार हैं, उनके लिए वसीयत जो है नहीं की जा सकती। इस्लाम का हिकमाना और मतवाजी निज़ाम है जिसमें मुसलमानों को बजा तौर पर नाज़ा होना चाहिए। बाज़ लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत करदा इन पाबंदियों को अपनी कम फहमी से खिलाफ कुरान कहते हुए मानने से इनकार करने लगे हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा सोचें तो इन्हें मालूम हो जाएगा कि अगर ये पाबंदियाँ उठा दी जाएं तो आपका निज़ाम वरासत बाज़ीचाए तिफला बनकर रह जाएगा। जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आयत पाबंदियाँ कबूल नहीं हैं, उसका इस्लाम के साथ कोई दूर दूर तक भी उसका कोई वास्ता नहीं है। इसलिए ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पर अमल किए बगैर बंदा जो है वो ईमानदार नहीं बन सकता जब तक वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातों पर मुकम्मल तौर पर ईमान ना ले आए। दोस्तों, वो हमने वसीयत की बात की जिसमें इस चीज़ की नफ़ी फरमा दी गई कि आपने सखावत दिखाने के लिए अपने करीबी रिश्तेदारों को महरूम करके वसीयत ना कर जाएं, जो अरब के जाहिल दौर में था। अब आते हैं हम आयात मुतलका मिरास, सूरह निसा पारा नंबर 4 आयत नंबर 7। मर्दों के लिए हिस्सा इसमें जो छोड़ गए माँ बाप और करीबी रिश्तेदार, और औरतों के लिए हिस्सा इसमें से जो छोड़ गए माँ बाप और करीबी रिश्तेदार। इस तरका से खा थोड़ा हो या ज़्यादा हो, यह हिस्सा अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है। अरब में मिरास की तकसीम का यह कायदा था कि औरतें और छोटे बच्चे अपने मरने वाले बाप और खामंद वगैरह की विरासत से यकसर महरूम कर दिए जाते, और इसकी वजह यह बयान की जाती कि जो मैदान जंग में दादे शजात देने के काबिल नहीं, वो मिरास पाने का भी हकदार नहीं। भारत में भी औरत वारिस शुमार नहीं की जाती थी, और यूरोप में तो उल्टी गंगा ही बह रही थी। सिर्फ बड़ा लड़का वारिस बनता, दूसरे लड़के महरूम रह जाते। ये हालत थी। जब कुरान की यह इनकलाब आफरीन आयत नाज़िल हुई जिसने औरतों को मर्दों की तरह वारिस करार दिया, बड़े लड़के की तखसीस ख़त्म करके सब लड़कों को अपने मुतवफ़ी बाप की विरासत में बराबर का शरीक बनाया, छोटी और बड़ी तमाम जायदादों में वर्सा को हस्बे हिस्सा हकदार तस्लीम किया। अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हिस्से हैं जो विरासत में बयान किए गए हैं, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। यानी कि जो शख्स, जो अल्लाह ताला ने हिस्से कुरान मजीद में सूरह निसा में खोल खोल कर बयान कर दिए हैं,
इनको कोई शख्स भी अगर तब्दील करेगा, उस पर अमल नहीं करेगा, तो उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम है। वो ये मत समझे कि वो रब की बात मानने बगैर जो है मुसलमान रह सकता है। यानी जो उसको चीज़ें फ़ायदा दे रही हों वो उस पर तो ईमान लाता रहे, और जो उसके नुकसान की तरफ जाएं तो उससे वो जो है ना वो मुंह मोड़ ले। ऐसा कतन नहीं है। कुरान मजीद ने जिस अंदाज में जिस अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इरशादात फरमाए, उसमें डेफिनेटली जो है अल्लाह पाक का बहुत बड़ी मसलहतें जो पूरे माशरे के लिए ज़रूरी हैं वो पोशीदा हैं। दोस्तों, सूरह निसा में जो असलूब बयान किया गया है उसमें जो भी हिस्से तकसीम किए गए हैं हम उनकी बाबत जो है बात करेंगे। और इसमें हम ये बात देखते हैं कि अल्लाह पाक ने किसी के साथ भी किसी किस्म का कोई भी जो है वो जो है उनका जुल्म नहीं होने दिया। तमाम जो हिस्सेदारान हैं उनके साथ हक वाला साथ दिया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि सूरह निसा आयत नंबर 12 पारा नंबर 4 में क्या बयान किया गया। और तुम्हारे लिए निसफ है जो छोड़ जाएं तुम्हारी बीवियां, बशर्ते कि ना हो इनकी औलाद, और अगर हो इनकी औलाद तो तुम्हारे लिए चौथाई है। इससे जो वो छोड़ जाएं, ये तकसीम इस वसीयत के पूरा करने के बाद है जो वो कर जाएं और कर्ज अदा करने के बाद। और तुम्हारी बीवियों का चौथा हिस्सा है इससे जो तुम छोड़ो, बशर्ते कि ना हो तुम्हारी औलाद, और अगर हो तुम्हारी औलाद तो इनका 8वां हिस्सा है। इससे जो तुम पीछे छोड़ जाओ, ये तकसीम इस वसीयत को पूरा करने के बाद है जो तुमने की हो और तुम्हारा कर्ज अदा करने के बाद। और अगर हो वो शख्स जिसकी मिरास तकसीम की जाने वाली है, कलाला मर्द हो या औरत, इसका भाई या बहन हो, तो हर एक के लिए इनमें से छठा हिस्सा है। और अगर वो बहन भाई एक से ज्यादा हों तो सन शरीक है तहाई में वसीयत पूरी करने के बाद है जो की गई है, और कर्ज अदा करने के बाद, बशर्ते कि इससे नुकसान ना पहुंचाया गया हो। निज़ाम वरासत हुक्म है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला बड़ा बुर्दबार है। दोस्तों, हमने ये बात अपने पल्ले बांध लेनी है कि कुरान मजीद की एक एक आयत जो है वो हमारे लिए जो है वो हुक्म है। अगर हम उस हुक्म को बजा नहीं लाते तो फिर हमें खुद को मुसलमान कहने का भी हक हासिल नहीं है। तो अब हम जो बातें अभी हमने आपकी खिदमत में पेश की हैं उस हवाले से बात करते हैं कि औलाद के वारिस होने की 4 सूरतें हैं। नंबर 1, लड़के भी हों और लड़कियां भी। इस सूरत में लड़के को 2 हिस्से और लड़की को 1 हिस्सा मिलेगा। नंबर 2, सिर्फ लड़की हो तो इस सूरत में लड़की निसफ जायदाद की वारिस होगी। नंबर 3, सिर्फ 2 लड़कियां हों, 4 या 2 से जायद और लड़का कोई ना हो, इन 2 सूरतों में लड़कियों को जायदाद का 2/3 हिस्सा मिलेगा, 2/3 हिस्सा मिलेगा। अगर लड़कियां जो हैं वो इससे ज्यादा हों, 2 से ज्यादा हों। वालिदैन के वारिस बनने की 3 मुख्तलिफ सूरतें हैं। मां बाप भी मौजूद हों और औलाद भी हो, खा लड़का हो या लड़की, 1 या ज्यादा। इस सूरत में मां बाप को 6ठा हिस्सा मिलेगा और बकाया जो 4/6 औलाद में हस्बे कायदा तकसीम होगा। उससे आगे चलते हैं। नंबर 2, सिर्फ मां बाप वारिस हों, मैयत की औलाद भी ना हो और बहन भाई भी ना हो।
इस सूरत में माँ का 1/3 और बकिया 2/3 बाप का। यहाँ बहन भाई बी के ना होने की तशरीह नहीं की गई, क्योंकि तीसरी सूरत में वजाहत आ रही है। तीसरी सूरत क्या है जी? मैयत की औलाद तो ना हो मगर इसके भाई या बहन हो। इस सूरत में माँ को 6वां हिस्सा और बकिया 5/6 बाप को। भाई बहन खा आइनी हो यानी एक ही माँ बाप की औलाद हो, खा अलाती यानी माँ बाप एक, माँ बाप एक माएँ अलग अलग, या खयानी यानी माँ एक बाप अलग अलग। इन सन हालतों में एक ही हुक्म है, बाद के बायस भाई बहनों को हिस्सा ना मिलेगा। इन हिस्से को खुदाए अलीमो खबीर ने अपनी हिकमत कामला से मुकर्रर फरमा दिया है। तुम्हें यह इख्तियार नहीं है कि इनमें रद्दो बदल करो, और अगर यह बात तुम्हारी सवाबदीद पर छोड़ दी जाती तो तुम अपनी आर्जी और वक्ती मसलतों और मफाद के ज़ेरे असर मालूम नहीं क्या तरामीम करते रहते। अब ये दोस्तों कुरान मजीद का हुक्म है, इसमें किसी की भी अपनी कोई बात नहीं है। बीवी की विरासत तकसीम करने की 2 सूरतें हैं, और इसमें जो बात की गई है कि मुतवफ़िया बीवी की कोई औलाद ना हो, लड़की हो ना लड़का हो, ना तो में से किसी दूसरे खामन से। इस सूरत में निसफ खामन को मिलेगा और बकिया निसफ दूसरे वारसों में हस्बे कायदा शरी तकसीम हो जाएगा। इसकी कोई औलाद हो तो इस सूरत में 1/4 खामन को मिलेगी, बकिया दूसरे वारसों को। खामन की विरासत तकसीम करने की 2 सूरतें हैं। खामन की कोई औलाद ना हो, ना लड़का हो ना लड़की हो, ना मौजूदा बीवी से किसी दूसरी बीवी से, तो 1/4 बीवी को मिलेगा, खा एक हो या ज़्यादा। अगर खामन की औलाद हो तो बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, एक हो या ज़्यादा बाकी दीगर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, दीगर वारसों में तकसीम हो जाएगा। कलाला इस मर्द या औरत को कहा जाता है जिसकी ना औलाद हो ना इसके वालिदैन जिंदा हों। अगर इसके वारस आइनी या अलाती बहन भाई हों, इनका जिक्र आखिर सूरा में आया। अगर इसके अखियानी यानी माँ की तरफ से सगे बहन भाई हों तो उसका हुक्म यहाँ जिक्र फरमाया है। इसकी 2 सूरतें हैं, या तो एक भाई या एक बहन वारस होगी तो इस सूरत में इसको 6वां हिस्सा मिलेगा, और अगर एक से जायद हों तो सन को 1/3 हिस्सा मिलेगा। सब में बराबर तकसीम होगा। शरीयत इस्लामिया का यह हुक्म है कि जब कोई शख्स फोत हो जाए तो तजहीज़ो तकफीन के बाद सबसे पहले इसका कर्ज अदा किया जाए, बाद अज़ां इसकी वसीयत पर अमल किया जाए, इसके बाद बकिया तरका हस्बे हकाम कुरानी वारसों में तकसीम किया जाए। कर्ज की अदायगी का मुकद्दम होना ऐन इंसाफ है। वसीयत के बारे में शरीयत ने चंद एक हदूदो कयूद आयत किए हैं, और इस्लाम से पहले वसीयत के बारे में जो तरीका राय था इसमें इस्लाह फरमा दी, ताकि इस तरीका में जो बेरा रवी रूनुमा हो चुकी थी इसका सदेबाब कर दिया जाए। अहले अरब का यह दस्तूर था कि मरने वाला अपनी जायदाद की ऐसे लोगों के नाम वसीयत कर जाता है जिससे इनका दूर का वास्ता भी ना होता, और अपनी औलाद को महरूम कर देता, और इस फेल को शराफत व सगावत का कमाल शुमार किया जाता है। अल्लाह ताला ने इस बेरार रवी जो है इसके हवाले से फिर विरासत के अहकामात नाज़िल फरमाए और तमाम रिश्तेदारों के हिस्से मुकर्रर फरमा दिए। इनमें रद्दोबदल और कमी बेशी करने से साफ अल्फाज में मना फरमा दिया। लेकिन बाज़ औक़ात कोई अजनबी या गैर वारस रिश्तेदार वारसों से कहीं बढ़कर किसी की खिदमत करता है और वो शख्स इसका मुआवजा उसे देना चाहता है या किसी कार खैर में हिस्सा लेना चाहता है, तो इसे भी इससे महरूम नहीं किया गया, बल्कि जायदाद का 1/3 हिस्सा में इसे वसीयत करने का हक दिया गया। कुरान करीम ने वसीयत के लिए गैर मुज़ार कैद लगाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हद 1/3 मुकर्रर फरमा दी। वसीयत की इजाज़त सिर्फ उन लोगों के लिए दी जाती है जो वारिस नहीं हैं। तो दोस्तों, ये बातें जो आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं, आप अगर किसी को कुछ देना चाहते हैं तो 1/3 आप दे सकते हैं, लेकिन वो ना हो जो वारिस भी हैं आपके, बल्कि वो हों जो विरासत में नहीं आते। दोस्तों, मुख्तसरन आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया कि ये जो विरासत वाला मामला है, इसमें किसी सूरत भी
کوئی بھی شخص جو ہے وہ تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ قرآنی معاملہ ہے اور قرآن کے معاملے پر کسی کو بھی جو ہے وہ اپنا استدلال دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ In the event of the death of any son or daughter of the prospitous before the opening of succession, the children of such son or daughter, if any living in the time the succession opens, such tribes receive a share equivalent to the share which such son or daughter, as the case may be, would have received if alive. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جو وراثت کا معاملہ ہے یہ حکم ربی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو جو ہم رد و بدل جو ہے اس میں نہیں کر سکتے، اور جو اس میں سے رد و بدل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کی وہ نفی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مقدار کو اس کا حصہ عطا فرما دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے لیے وصیت کی اجازت نہیں۔ بعض لوگ وارث کو وصیت کرنے سے محروم کرنے اور وصیت کو 1/3 تک محدود کرنے پر بڑے جو ہے نا وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ کاش وہ اسلام کی حکیمانہ نظام پر غور کریں، اس پر سیر حاصل بحث کی جا سکتی ہے، میری بہت سی ویڈیو پر اس پہ بات کی گئی ہے۔ دوستو، آیت نمبر 176 سورہ نساء پارہ نمبر 6، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کی میراث کے بارے میں۔ اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے نہ ہو جس کی کوئی اولاد، اور اس کی ایک بہن ہو تو اس بہن کا نصف حصہ ہے اور اس کے ترکہ سے، اور وہ وارث ہوگا اپنی بہن کا اگر نہ ہو اس کی بہن کی اور کوئی اولاد، اور پھر اگر 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کو 2/3 میں حصہ ملے گا۔ اس سے جو اس نے چھوڑا اگر وارث ہوں بہن بھائی، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد بھائی کا حصہ 2 عورتوں کے حصہ کے برابر ہوگا۔ صاف صاف بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کہ گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ اب دیکھیں کلالہ کے حوالے سے اللہ پاک نے بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ کلالہ کے صورت میں کس طریقے سے ہم نے تقسیم کرنی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اپنی مرضی، جس طرح آج کل کے دور میں ہو رہا ہے کہ باپ بیٹوں کو سارا کچھ دے جاتا ہے اور بیٹیوں کو اس سے محروم کر جاتا ہے، اور کہتا ہے جی بیٹیوں کی شادی کر دی، ان کو پڑھا لکھا دیا، وہ تو غیر دھن ہے، غیر کے گھر چلا گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں تو پھر اپنے آپ کو ہم مسلمان کہنا چھوڑ دیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کا، قرآن کا صریحاً انکار کرتے ہیں، تو پھر بتائیے ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ اس لیے بڑے تکلیف کے ساتھ میں آپ کو یہ عرض کر دوں، بڑا دکھ کے ساتھ آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں 50% سے زیادہ جو لٹیگیشن ہے وہ وراثت کے حوالے سے ہے۔ بچیوں کو ان کی وراثتی حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو تملیک اور ہبہ کے نام سے وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور پاکستان میں بہت سے قوانین بنے ہیں۔ اینٹی وومن پریکٹسز ایکٹ 2011 میں آیا، اس کے علاوہ بھی بہت سے جو ہے وہ کوششیں کی جاتی رہتی ہیں۔ میری یہ سجیشن ہے، اور اس حوالے سے ہم نے نیشنل اسمبلی سینٹ کے چیئرمین کو بھی لیٹر لکھے ہیں کہ جناب ہبہ کے نام پر، تملیک کے نام پر جو بچیوں کو محروم کیا جاتا ہے اس سے غیر قانونی قرار دے دیا جائے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر وصیت کرنی ہے تو 1/3 کی کر سکتے ہیں، اب وہ وصیت والا معاملہ آ گیا، لیکن اپنی زندگی میں وہ اپنے مال کو صرف اس انٹینشن سے کہ بچیوں کو نہ دیا جائے، تو یہ انٹینشن صاف ظاہر کرتی ہے کہ مقصد ایک بچیوں کو، بیٹیوں کو محروم کرنا ہے، یا کسی خاص صورتحال، میرے پاس ایسی صورتحال بھی آتی ہے جس میں بیٹے کو محروم کر دیا گیا، ایک بیٹے کو، اور باقی بیٹوں کو دے دیا گیا۔ لیکن یہاں پر میں بات آپ کو عرض کر دوں
کہ یہ بالکل سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا بات ہوئی جی آپ اپنی زندگی میں سارا اپنے بیٹوں کو دے دیں اور بیٹیاں دھکے کھا رہی ہوں؟ بیٹوں کو آپ نے بہت زیادہ نواز دیا اور بیٹیاں جو ہے وہ کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہی ہوں، اور بیٹے جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں سیرنگ کرتے پھر رہے ہیں اور بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہوں۔ یہ کہاں کا انصاف ہوگا؟ اس حوالے سے ہماری کوششیں جاری ہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک نیتی سے یہ جو ہم نے علم اٹھایا ہوا ہے اس حوالے سے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔